علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستوں، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈے ٹھاڈ ہو کر مشروبات سے فائدہ اٹھائیے، گرم چیزیں نہیں کھائیے، نمکین لسی پیجیے نمک ڈال کے، اور یہ فالتو برگر شرگر سے پرہیز کیجیے کہ گرمی ہے، معدہ برداشت نہیں کرتا گرم چیزیں، تو پھر بیماریاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو شکر ہے اللہ کا، کراچی سمندر سے بہت قریب ہے، تو شام کے وقت موسم زبردست ہو جاتا ہے، رات تک پھر ہوائیں ماشاء اللہ سے بھی ایسی چل رہی ہیں۔ تو کل بات کر رہا تھا میں، سدھو موسیٰ والا ایک سنگر تھا، اس کا پتہ نہیں مرڈر ہوا ہے کیا ہوا ہے، تو اس پر مسلمان بھائی بڑے افسوس کا ریئیکشن دے رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ریسٹ ان پیس، may his soul rest in peace، بلا بلا بلا۔ تو شریعت کے خلاف ہے یہ کہ کسی غیر مسلم کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، یا اس کو کہیں کہ تمہیں جہنم واصل ہو، تو دونوں صورت غلط ہے بس۔ تو خیر، میں بھی ایک ٹائم تھا کہ سنگنگ کا دیوانہ تھا، لسننگ سانگس ہر وقت لگا ہوں، مطلب ہر 4 سے 5 دن بعد میری ایک نئی ہینڈ فری ہوتی تھی۔ میرے جن کے ساتھ ٹائم گزارا میں نے، وہ جانتے ہیں بہتر، تو بہت دیوانہ تھا، میری پلے لسٹ تھی بھری پڑی ہوئی، اور عاطف اسلم کا فین تھا میں، اس کے گانوں کا، جل پری سب سے پہلا گانا اس کا، کچھ اس طرح ہو۔ تو مطلب گھر سے باہر نکل رہا ہوں، ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، اور گھر آ رہا ہوں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، راستے پر ہر جگہ، آفس ادھر ادھر ہینڈ فری لگی ہے، گانے چل رہے ہیں اس میں، مطلب 2 سے 2,500 میرے پاس گانے، پرانے سے لے کر نئے تک۔ تو اللہ نے پتہ نہیں ایسا کیا دل میں میرے ڈالا کہ وہ جو شوق تھا وہ ختم ہی ہو گیا۔ مطلب اب کام کے لیے لگا لی ہینڈ فری، کوئی امپورٹنٹ ویڈیو وغیرہ، لیکچر ہے یا پروجیکٹ ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے یا میٹنگ ہے کوئی زوم وغیرہ پہ یا ٹیمز وغیرہ پہ، مائکروسافٹ ٹیمز، تو جب یوز کر لی، یا پھر کچھ شارٹ کلپ دیکھ لی کچھ، تو اللہ نے ماشاء اللہ سے ایسا ختم کیا ہے شوق۔ اللہ جس کو چاہے جائے ہدایت دے۔ تو بات یہ ہے کہ میں ہو گیا تھا ڈپریشن کا شکار بہت، یعنی بچپن سے میں بڑا ٹاپ 1st 2nd پوزیشن ہولڈر، اس پہ پریشر رہا کہ پوائنٹ سے رہ جاتا تھا تو ماں باپ سے پٹتا تھا اور مارتے تھے، سنتا تھا ہر وقت، سنتا تھا، یہ عادت بڑی ہوتی گئی، بڑا جب تک ہوتا گیا، یہ ان کی چلتی رہی روٹین، تو میں پوزیشن ہولڈر سے جب جتنا بڑا ہوتا گیا اتنا ڈاؤن فال میں آتا گیا۔ تو اس لیے ماں باپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچوں سے دوستی بنا کے رکھیں، مطلب اکیلا پن کا شکار ہو گیا تھا میں، مجھے اندھیرا اچھا لگتا تھا، روشنی بری لگتی گئی ہے، اور اکیلا رہتا تھا، بالکل تنہائی کا شکار، کھانا کھا رہا ہوں، اور زیادہ ٹائم تو باہر ہی گزارتا تھا میں، صبح آفس،
पहले रूटीन थी सुबह पढ़ाई की, फिर शाम में कोई जॉब की, फिर रात में कोचिंग वगैरह ट्यूशन की। तो और उसके बाद रात में दोस्तों के पास। तो खाली मतलब घर में खाना खाने जाता था और सोने जाता था। फिर रूटीन चेंज हुई, सुबह ऑफिस हो गया, शाम में पढ़ाई हो गई, रात में दोस्त यार हो गए। तो यही चलता गया सिलसिला, तकरीबन 6-7 साल ऐसे ही चला। और उस वक्त गाने को मैंने दोस्त बना लिया था। अच्छा, मैंने हार्ड वर्क भी किया बहुत, फिर अल्लाह ने उसका सिला दिया मुझे। तो मैं यानी उसका सिला ऐसा मिला कि मैं आसमानों में उड़ने लग गया था। मतलब अपनी मर्ज़ी से अगर दिल चाह रहा तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, वरना नहीं पढ़ रहा। अपनी मर्ज़ी और दिल चाहना, तो नमाज में ऐसा थोड़ी है, नमाज तो फ़र्ज़ है, अपनी मर्ज़ी थोड़ी चलेगी इसमें कोई, या दिल चाहना थोड़ी चलेगा। तो अल्लाह के रास्ते से भटक गया था। तो अल्लाह ने मेरे ख्याल से, अभी मैं 1.5 साल से बीमार पड़ा हूँ, 1.5 से 2 साल हो गए। ऐसा अल्लाह ने मेरे ख्याल से वैसा फटका है मुझे नीचे ज़मीन पर, बीमारी की सूरत में। तो पहले तो मायूस था मैं अपनी ज़िंदगी से कि बीमारी, या अल्लाह मैं बीमार रहता हूँ, मेरे साथ ही मसला, बाकी सब सही रहते हैं, ये वो। तो बाद में काफ़ी बड़े लोगों से, बुज़ुर्गों से, बड़े यानी अल्लाह के बंदों से सुना, तो उन्होंने बताया कि बीमारी में तो अल्लाह अपने नज़दीक कर लेता है बंदे को, और उसके गुनाह धुलते रहते हैं बीमारी की सूरत में जो अल्लाह देता है। तो इस पे तो शुक्र अदा करना चाहिए, इस पे वो नहीं होना चाहिए मायूस या गमगीन। तो फिर अब मेरे साथ ये है कि मैं, आधी उम्र गुजर गई है, मतलब 50 से 60 साल मैक्सिमम है ज़िंदगी, वरना अभी तो जवान भी जा रहे हैं। मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, 50 से 60 साल। तो आधी ज़िंदगी मैंने देख ली, गुजर गई, और बहुत गहराई में देखी है मैंने। तो अल्लाह से अब यूँ वो होता है कि यार ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मतलब अब ऐसी यानी यूँ मायूस हो कि अल्लाह, फितनों का दौर है, इनसे बचना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि मैंने जहाँ काम किए हैं वहाँ पे ज़िना आम था, शराब आम थी, हर नशा आम था, हर गुनाह का दरवाज़ा खुला हुआ था उधर। तो अल्लाह ने मुझे बचा के रखा। मेरे ख्याल से अल्लाह ने मुझे उधर यूं ही यानी उधर लेकर गया उस रास्ते पर कि इसको आजमाता हूँ कि ये भटकता नहीं भटकता। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हिफाजत में रहा, मैं हर चीज़ से बचा रहा। मेरे ख्याल से अल्लाह की आजमाइश थी, क्या था, इतना टाइम पीरियड मैंने गुजारा है। तो अल्लाह ने ही ये हौसला दिया, सब्र दिया, हर चीज़ से बचाया। उसका जितना शुक्र अदा करे कम है। तो बड़ी गहराई से मैंने देखी है। पहले तो मायूस था मैं अपनी सेहत को लेकर के, हर वक्त बीमार रहता हूँ, या अल्लाह बाकी सब सेहतयाब हैं। तो अब मैं यूँ मायूस हूँ कि अल्लाह ये बड़ा गंदा दौर चल रहा है, या दज्जाली दौर चल रहा है। तो जल्द से जल्द अल्लाह जितना हो सके अपने पाप बुला ले। तो बचे रहें भाई, जितना हो सके बचें। और माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार अपने बच्चों को दोस्त बनाएं। मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूँ इस डिप्रेशन से, यानी अपनी दुनिया में मस्त हो गया था मैं बिल्कुल। उन पे प्रेशर ना दें अपनी औलादों पर। और लोगों ने तो भाई साइको बना दिया था मुझे।
इसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स बोल रहे थे मेरी डायग्नोस नहीं कर पा रहे बीमारी, तो वो साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, एक डॉक्टर से, तो खड्डा हो गया, मुँह भारी हो गई। तो बहरहाल वालिद को मेरे यानी काबू कर लिया कि हाँ ये वाकई में साइको हो रहा है। तो बचें भाई, ये दुनिया बहुत बुरी है और आपका कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में खाली माँ बाप के अलावा। माँ बाप के अलावा देखेंगे कि यार अब न्यूज़ चैनल में देख रहे होते थे पहले, आप भाई भाई का कत्ल कर रहा है, भाई बहन का कर रहा है, तो ऐसा बुरा वक्त आ गया है, बेटा माँ का कर रहा है, औलाद बाप का कर रहा है, ऐसा बुरा वक्त आया हुआ है। अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे सबको। तो क़यामत की निशानियाँ हैं सारी। अब वो बात भी नहीं है रिश्तों में, अब खाली फॉर्मेलिटीज़ है। अभी अगर कोई ज़िंदा होगा 80-90 साल की उम्र का बंदा, तो हाँ उससे आपको दिल लगी होगी, मोहब्बत होगी, वाकई में यार ये बंदा असूल परस्त है और हर चीज़ मोहब्बत वाला है। और अब जो बाकी लोग आए हैं, जो बड़े हुए 40-50 साल के हुए, उनमें वो बातें नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं है रिश्तों में, कोई बात नहीं है, बहन भाई का नहीं है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मेलिटीज़ चल रही है आपस में। तो वह क़यामत की निशानियाँ है सारी, जितना हो सके। क्योंकि देखें, अल्लाह ने ये रिश्तों को खाली दुनिया की हद तक रखा है, वो इसलिए ही रखा है। दुनिया के बाद आप और अल्लाह का मामला है बस। तो आप अल्लाह को दोस्त बनाएं, अल्लाह को सहारा बनाएं, और माँ बाप को दोस्त बनाएं, उनके बाद अल्लाह के बाद अल्लाह से। बस कभी अपने अंदर गुरूर पैदा नहीं करिएगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ। सबसे अपने आप को दुनिया का वर्स मतलब बदतरीन गुनहगार ठहराइए अल्लाह की नज़रों में, तो अल्लाह आपका हाथ थामेगा। बुराइयों से बचे रहिए, क्योंकि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। बाकी ये दुनिया तो आपको खा जाएगी, क्योंकि सच्चा इंसान दुनिया में झूठा है, ये हकीकत है। ये आजमा लें आप भले, मैंने तो बहुत आजमाया ये। सच्चा इंसान दुनिया में झूठा है, और दुनिया कदर करती है झूठे इंसान की, ये हकीकत है। तो तक के लिए दीजिए अब्दुल बासित खान को इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।